welcome to Father's Care Online. We're so glad that you can join us here today, and we believe that it is going to be a great service for you. Now, before we get into it, let's do the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Now let's get ready to dance, praise, worship like no one's watching, for He's watching. Come on, let's do it together with the Father's Care worship team. Praise the Lord. And welcome to Father's Care Church. We're so blessed to have you, and we're privileged to bring worship to you in the comfort of your home. So whilst you're there, let's just go in, let's give God praise, and just give Him all the adoration that He deserves, because I know I'm going to do the same. Amen. Lord, you are good. Come on, clap your hands and sing with us. I worship you, Jesus. Lord, you are good. Say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing it, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are.
Give God praise. He deserves the praise. Thank you, Jesus, for you are good, for you are great and mighty to be praised, Lord. We just worship you, Lord. We just worship you. Come on. Let's just open up our heart unto Him. This is the intimate time of worship. This is the time you connect to Him. So open it up unto Him and just lay it at His feet. He is ready. He is willing. Just believe. Thank you, Lord. With all I am, Jesus, I will worship you, Lord. Into your hands I commit again, with all I am to you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Into your hands we sing. To your hands I commit again, with all I am to you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you, Jesus. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Yes, we were. Let's cry out hallelujah. For you are the same yesterday, today, and forever, Lord. You never change, you never waver. Your word never changes. Lord, we just believe in you, our rock, our salvation. बवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान,
पवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बनती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा। हो आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Yes, we worship, we give you glory, for you deserve, you deserve. Cry out unto him, come on, give him worship. We worship you, Jesus. Come on, just worship him. Lift up your voices unto him, for he deserves the praise, he deserves the glory. He is that spiritual rock, he is that foundation where we set our feet upon. Thank you, Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. Yes, Lord. I will worship you, Jesus. I will worship you, and I will worship you, and I will worship you. I will worship you. Cry it out. I will worship. I cry out, Lord. I will worship you, and I will worship. Yes, Lord, we'll worship you one more time. I will worship, and I
and I will worship you. Yeah, yeah. Hey church, we hope you are staying safe and staying connected with one another. Even though we are not able to gather together in person right now, we want to encourage you to connect with us through our different avenues. If you have any prayer requests or in need of a person to talk to, simply contact us using the details on the screen to get in touch. Every Sunday night at 6 p.m, we are meeting on Zoom to take Holy Communion together as one family, as well as fellowship with one another. We definitely encourage you to join us online, ready to worship, pray, and fellowship with one another. We encourage you to continue your generosity and giving what belongs to the Lord. On the screen are our online account details which you can use to tithe. Now, let's prepare our hearts for the word and what the Lord has in store for us today. प्रभु की जय। हम सभी को स्वागत करते हैं इस समय। जहां से भी आप जुड़ते हैं, हम यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन तुम्हारे तक पहुंचता है। आज का जो प्रचार है, आज का जो मैसेज है, वो लिया गया एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 25 ऑनवर्ड्स। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were broken. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Then he called for a light, ran and fell down, trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sir, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you. Lord, this is your doing, and it is marvelous in our eyes that we could hear your word, which is living and powerful word. Lord, we believe, oh God, everyone that hears your word, you will talk to them personally. Oh God, we believe it tonight, that Jesus, you'll go before us and touch every heart. In Jesus' name we pray and ask. And everybody said amen. परमेश्वर का वचन कहता है, आज जब हम बाइबल में से देखते हैं कि थोड़ा पहले से जब हम इस वर्स को देखते हैं कि पॉल और साइलस जो है वो दोनों परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु के साथ बहुत समय बिताया वचनों के साथ, और वचन से सीखते गया और परमेश्वर के राज के काम को उन लोगों के मनों में आया कि परमेश्वर के काम को हम आगे बढ़ाएं। तो एक रात परमेश्वर ने इन दोनों को बीच में भक्त पौलुस को एक दर्शन देता है, और उस दर्शन में वो देखता है एक विजन में कि मैसेडोनिया नाम के जगह के लोग उसे पुकारते हैं कि आप आइए और हमारे बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को हम तक पहुंचाए। और ये दोनों तैयार होकर और चले गए परमेश्वर के वचन को बांटने उस जगह पर मैसेडोनिया में। बाइबल कहता है वो दर्शन के बाद ये बहुत खुश हुए कि हमें मौका मिलता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, और परमेश्वर का वचन में ज्योति है, जीवन है।
ये बात इन लोग को पता है। और वो जीवन, वो ज्योति देने के लिए ये लोग मैसेडोनिया पहुंचते हैं, बाइबल कहता है। और जिन लोगों तक ये लोग पहुंचाना चाहते हैं, ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर के संतान है हम सब। पूरी दुनिया में परमेश्वर ने हम सबको बनाया अपने स्वरूप में। और ये लोग जो मैसेडोनिया के लोग हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया है। हमारे अगल बगल जो है सब परमेश्वर के संतान है, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के संतान है, क्योंकि बाइबल हमें दिखलाता है Psalms 139 और 14 में, दाऊद राजा ने कहा, For I am fearfully and wonderfully made। और आगे कहता है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाने के बाद, जब वो कहता है कि fearfully and wonderfully, इसके मतलब ये है जब परमेश्वर ने हम लोग को बनाया, बहुत मन से, दिल से, खुशी से आपको और मुझे बनाया है उसने। और बाइबल कहता है बनाने के बाद हर एक इंसान को उसका जो अपने हाथों में हर एक के नाम, हर इंसान को गुदा है उसने। So he engraved us in the palms of his hand, the Bible says, Isaiah 49:16, कि अपने हाथों में उसने आपके चेहरा जो है वो उसने गुदा है। So he has engraved you. He did not write with a pen. He engraved it so that no one can rub it off from his hand. So हम लोग जो है, हम लोग परमेश्वर के हाथ में गुदा है। ये बात जान ले प्यारे भाइयों बहनों कि परमेश्वर के हाथ में हम गुदा गया है। बाइबल कहता है कि हम इतना करीब से परमेश्वर हम लोग को बनाया है, उसने हमारा पूरा इतिहास, हमारे जन्म से लेकर अंत तक उसने अपने बुक में, अपने किताब में लिख चुका है। बाइबल कहता है Psalms 139:16। इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि तुम इतना कीमती है जो आज सुनते हो परमेश्वर के वचन। तुम इतना स्पेशल है परमेश्वर के लिए, क्योंकि 7.5 बिलियन से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन कोई एक के जो फिंगरप्रिंट्स है एक दूसरे से नहीं मिलते। इसका मतलब यह है यू आर ए डिजाइनर पीस। परमेश्वर अपने शौक से, अपने प्रेम से तुम्हें बनाया है आज। इसके लिए तुम बहुत कीमती इंसान है। जहां से भी तुम सुनते हो आज परमेश्वर का वचन, तुम बहुत कीमती इंसान है परमेश्वर के निगाह में। और यह बात बाइबल कहता है कि यह बात पॉल और साइलस समझता है कि हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, वो इंसान कितना कीमती है परमेश्वर के निगाह में। वो इंसान कितना बहुमूल्य है परमेश्वर के निगाह में। वो इंसान चाहे कोई भी हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान, वो मानव जाति बहुत कीमती है परमेश्वर के निगाह में। इसीलिए बाइबल कहता है प्रभु यीशु ने अपने चेले लोग को तैयार किया कि तुम्हें इस जगह पर जाकर परमेश्वर के शुभ संदेश को पहुंचाना है। घर घर में पहुंचाना है, घराने में पहुंचाना है, गांव गांव में परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है, देश देश में परमेश्वर का पवित्र और बहुमूल्य वचन पहुंचाना है। दोस्तों,
पौल, भक्त पौलुस और साइलस इस बात को समझा और वो निकल गए घर घर परमेश्वर के पवित्र वचन पहुंचाते। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर के लोग जो बहुमूल्य वचन को लेकर आते हैं तुम्हारे घर तक, तुम्हारे घर के दहलीज पर जब वे अपने पांव को रखते हैं, अपना कदम को बढ़ाते तुम्हारे तक, ताकि आप और आपके घराना परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इन दोनों को उस रीति से तैयार किया। लूक 10:19 में कहता है that Jesus said that he gave authority to Paul and Silas and to every believer who are listening to the word. He gave them authority to trample upon serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर ने इन दोनों के साथ साथ हर एक विश्वासी को आज वो ताकत, वो सामर्थ दिया है कि तुम बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वे चंगाई को पाएगा। यीशु मसीह के नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये ताकत, ये अथॉरिटी परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को आज दिया है। आप जहां से भी सुनते हो परमेश्वर का वचन, मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास में ये सामर्थ, ये ताकत परमेश्वर की ओर से दी गई। ये तुम्हारे पास है जहां भी तुम है, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने इतना सामर्थ देकर जब किसी को भेजता है किसी घर पर, वो बहुत ताकतवर इंसान बनता है, क्योंकि वो परमेश्वर के ताकत को लेकर तुम तक पहुंचता है। वो क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे बेहद प्रेम किया है और वो चाहता है कि तुम्हारे घर में से, तुम्हारे घराने में से वो शराब का बंधन टूटे। वो जो अंधियारा बादल है, दुख के बादल है, वो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घराने से हट जाए। हर एक बीमारी, हर एक रोग तुम्हारे जीवन से निकल जाए। तुम्हारे बेटे और बेटी के जीवन से हर एक दुख और मुसीबत हट जाए। परमेश्वर चाहता है। इसीलिए दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लेकर उसके सेवक और सेविका लोग तुम्हारे घर के आंगन में खड़े होते हैं। तुम तक पहुंचना चाहते हैं, वे किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए। इसीलिए भाई और बहन, परमेश्वर के वचन कहता है, बोले, हाउ गुड एंड हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु प्रीच द गॉस्पेल। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट of those who preach the gospel. बोले, देखो कितना सुंदर है वो पांव जो परमेश्वर के पवित्र सुसमाचार को लेकर हमारे घर के चौपट पर आते हैं। कितना सुंदर है वो पांव। It's a beautiful thing that God has said, spoken about His people, His disciples who were carrying the word. आज भी तुम्हारे घर पर जो भी परमेश्वर का वचन लेकर आता है, मैं बतलाना चाहता हूं, आई वांट टू एनकरेज यू, ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है। ये जो परमेश्वर के वचन लेकर तुम तक पहुंचता है,
ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये लोग जो है ये परमेश्वर के दी हुई आज्ञा को पालन करता है। That's why they bring the word of God with them. They bring healing. They bring deliverance with them. They bring that remedy with them, which is the word of God. परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। ये बहुत कीमती लोग हैं। ये बहुत परमेश्वर के बहुत खास लोग हैं। इन लोगों को हम वो मान सम्मान को देते हैं, वो इज्जत को देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का भक्त लोग हैं। और यही भक्त लोग लेकर परमेश्वर का वचन मैसेडोनिया में पहुंचता है। The Bible says they took the word of God to Macedonia. क्योंकि यही परमेश्वर है, तुम्हारे जो दुख है, He turns your sorrow into joy. John 16 verse 20. ये वो लोग हैं जो जाकर तुम्हारे दुख को आनंद में बदलता है। प्रभु की जय, praise the good Lord. ये वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारे हर एक अंधियारा को, अंधकार के जीवन से तुम्हें ज्योति में लेकर आता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के चुना हुआ लोग हैं। और ये दोनों पॉल और साइलस घर घर में प्रचार करता है। और जब लोग ने उसके देखा प्रचार करते, जब लोग ने उन लोगों को सुना, जब लोगों ने देखा कि घर बदल रहा है, कल तक जो लोग बंधुआई में झगड़े थे, आज वो बंधुआई से छूट गया। कल तक जो दुख और मुसीबत में फंसे थे, आज वो निकल रहा है। जो कमी थी, जो घटी थी, आज उनके जीवन में पूरा हो रहा है। तमाम लोग अगल बगल में देखना शुरू किया, एक दूसरे से सुनना शुरू किया। इन लोगों ने, वे सुन रहे थे कि गांव में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है। ये सब सुनते रहे, देखते रहे। कई लोगों के मन खराब हो गया कि कल तक जिन लोगों के ऊपर हम हुकूमत चला रहे थे, कल तक जो लोगों को हम कहते थे कि क्या करना है क्या नहीं, कल तक जो हमारे बात सुनकर दौड़ते रहे, जिन लोगों के ऊपर हम अधिकारी थे, आज ये लोग इस बंधुआई से छूट गया। ये लोग आज हम लोग से बातें करता है आमने सामने खड़े होकर। कल तक जिसका कोई हिम्मत नहीं था कि तुम्हारे सामने खड़ा हो, आज वो बंदा खड़ा होकर तुझसे बात करता है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन तुम्हें वो हिम्मत देता है। धर्मशास्त्र कहता है, The word of God builds you up. परमेश्वर का वचन तुम्हारे बुद्धि को बढ़ाता है, क्योंकि बाइबल कहता है 1 Corinthians 1:30 में, But of him we are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम बुद्धि को पाते हैं। हालेलुया। इंसान का जीवन जब बदलना शुरू हुआ, गांव के कई लोग में नफरत आया और इतना गंभीर पूर्वक ये लोग नफरत को लाया पॉल और साइलस के जीवन में। उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को पीटा गया, वो दोनों को, उनके कपड़े जो है वो फाड़ा गया और दोनों को उठाकर वो सलाखों के पीछे उन लोगों को बंद किया। They had to go through public humiliation.
They were humiliated in front of the whole town, whole village. But Jesus said, Isaiah 61:7, instead of your shame, I'll give you double honor. परमेश्वर के लोग के ऊपर जब भी कभी ये बौछार पड़ता है, ये कुछ गलती नहीं कर रहे थे. अगर धर्मशास्त्र को आप देखते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोग को बंधुआई से छुटकारा देते थे. हर एक लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति को ये लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें मजबूत बनाते थे, उन्हें कामयाब बनाते थे, ये बलवंत बनते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो गहराई और वो शक्ति है. और वो वचन, वही वचन आज तुम्हारे घर में आता है. परमेश्वर के वही पवित्र और बहुमूल्य वचन तुम तक पहुंचता है. प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये वचन जीवित है और प्रबल है और दोधार तलवार है. इन लोगों के जेल में भीगने के बाद बाइबल कहता है, जेल के भीतर बंद करने के बाद आगे 2 सेनाओं को लगाया गया ताकि ये लोग कभी निकल के भाग नहीं सके. इन लोगों के हाथों में हथकड़ी पहनाया गया, इन दोनों के पांव में भी बांधा गया ताकि ये लोग उससे छुटकारा नहीं पा सके. जब भी कभी तुम परमेश्वर के काम के लिए अच्छा काम करते हो, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों के अंदर में नफरत आएगा, जिन लोगों के अंदर में एक गुस्सा आएगा कि तुम क्यों ये काम करते हो. बाइबल कहता है, इस जेल के भीतर सलाखों के पीछे ये दोनों ये जानते हैं कि हम लोग अब अंदर भीग दिया गया और हम लोग जो है, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं. ये 2 आपस में बातें करना शुरू किया और जितना भी गार्ड्स थे वो लोग सुनते रहे इन लोग के बात. इतना मारा गया, इतना पीटा गया, लेकिन ये दोनों प्रभु यीशु को जानता है कि जब भी कभी तुम ऐसी जगह पर पहुंचते हो, जब तुम कैद में भेज दिया जाता है, जब भी कभी तुम्हें जेल के अंदर रहना पड़ता है, तो सिर्फ तुम 4 दीवार के बीच में है और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता. कई एक लोग आज, हमारे प्यारे लोग, कई एक लोग हैं जो खुद से अपने आप से एक कैद को बनाकर रखा है अपने दिमाग में, खुद को एक जेल में है, क्योंकि कल बीता हुआ, कल के जो पुरानी बात है उसको तुम लेकर आज अपने दिमाग में इतना जोर से अपने आप को, अपने हारा हुआ जीवन जो भी कुछ है तुम्हारा, तुम उसको लेकर अपने आप को बताते हो कि हम इस 4 दीवार के उस पार को नहीं देख सकते. ये तुम्हारा सोच है और सोचने का ढंग है. मैं बताना चाहता हूं कि पौल और साइलस ऐसा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन के द्वारा वे लोग बड़े हुए हैं. प्रभु यीशु के वचन को उन लोगों ने पढ़ा है और समझता है और इस बात को भी जानता है कि उन दोनों के आगे मौत खड़ा है. थोड़ा देरी के लिए सोचो, अगर तुम्हारा आगे मौत खड़ा रहे तो तुम्हारा रवैया क्या रहेगा? जब तुम जानते हो कि सुबह होते ही सेना के बीच में हमें खड़ा किया जाएगा, वो रात कैसे बीतेगी तुम्हारे साथ?
मैं ये पूछना चाहता हूं हर एक लोगों से, जो कैद में आज तुम है, तुम्हारे सोचने का जो ढंग है, अपने आप को अगर तुम छोटा बनाकर रखा है, अगर अपने आप को तुम नाकामयाब इंसान सोचते हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई लायक के नहीं है, या तो तुम अपने बीती हुई कल के हर एक बुराई को देखकर और अपने आप को कैद कर लिया, अपने जीवन को, अपने सोचने का ढंग को एक कैद कर लिया चार दीवार के भीतर, और तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा मौत हो सकता है, आज तुम क्या करोगे? आज रात तुम क्या करोगे ऐसे समय में? ये सवाल मैं करता हूं हर एक से। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे आगे मौत है कल, आज रात तुम क्या करोगे? बाइबल कहता है जब 12 बजा रात, क्योंकि पौल और साइलस दो जन इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन कहता है मैथ्यू में 18:19, if two shall agree concerning anything in my name, it shall be done by my Father in heaven. That's what Jesus said. He's saying the same thing to you tonight. He's saying the same thing to each and every one of you. If two of you agree, अगर दो जन किसी एक चीज पर एक मन होकर मांगता है, तो परमेश्वर तुम्हारे दरवाजा को खोल देता है. The Bible says in verse 25, but at midnight Paul and Silas were praying and singing. Would you sing a song when you know that death is just around the corner? Proverbs 18:21 में Bible says, the power of death and life is in your tongue. तुम्हारे जुबान में जिंदगी और मौत के ताकत परमेश्वर ने दिया है. इसका मतलब यह है कि जो तुम्हें पसंद है उसका फल तुम्हें मिलेगा. अगर अपन जुबान से तुम मौत को पुकारते हो तो मौत तुम्हारे बहुत दूर नहीं है. अगर अपने जुबान से जीवन की बात करते हो, और परमेश्वर जो दयालु है, कृपालु है, वो तुम्हें भरपूर देगा. क्योंकि उसने वादा किया कि मेरा वचन जो है धरती आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन वापस खाली नहीं आएगा. प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जहां से भी तुम सुनते हो, परमेश्वर का वचन कहता है वर्स 26 में, suddenly, it says, suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. The power of God, which is beyond our mind to comprehend. The God that you and I serve is so powerful. He is the creator of heavens and the earth, the Bible says. वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बोले पूरी जेल हिलाई गई और हर एक दरवाजा टूट गया. हर एक जितना भी तरह से लोग को बांधा गया वो सब टूट गया. और बाइबल कहता है आगे verse 27, and the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself.
जब वो गार्ड जब देखा कि पूरे दरवाजा सब टूट गया, जेली लोग दिखाई नहीं दे रहा, वो जानता था कि कुछ हुआ और ये लोग चले गए, और वो जानता था कि उसका मौत हो सकता है। उसने उस खंजर को निकाला और अपने आप को खत्म करने जा रहा था। आज तुम जहां से भी सुनते हो, शायद आज तुम सोचते हो कि तुम्हारा जिंदगी में सब कुछ खत्म, लेकिन भक्त पौलुस ने बहुत जोर से आवाज में उसको बुलाया और उसको कहा कि हम लोग भागे नहीं, हम लोग यहां पर ठहरे हैं, तुम अपने आप को खत्म मत करना। क्योंकि प्रिजनर्स लोग समझ गए, जेली ऑर्डर्स लोग समझ गए, ऑफिसर्स लोग समझ गए कि वो महान परमेश्वर के जिसके गीत ये लोग गा रहे थे, प्रभु यीशु का वचन को गा रहे थे, उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। कठिन समय में जब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये लोग उस समय गीतों को गाया, परमेश्वर की जय जयकार को करा, और वो परमेश्वर इन लोगों के बीच में प्रकट हुआ। वो लोग देखते रहे कि किस प्रकार से पूरा फाउंडेशन हिलाई गई। आज जो कुछ तुम्हारे दिमाग में झगड़ा हुआ है, जो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब तुम प्रभु यीशु की स्तुति को करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना को करेंगे, प्रभु यीशु की महिमा को करेंगे अपने जुबान से, जबकि मौत सामने खड़ा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा और उसकी जय जयकार और उसकी बढ़ाई इस कठिन समय में, इस अंधियारा समय में, जबकि सारी दुनिया आज पेंडेमिक में फंसा है, हर एक लोग मौत के ओर देख रहे हैं, ऐसे समय में जब तुम परमेश्वर की जय जयकार करते हो, अपने वही ज़बान से तुम उसके बड़ाई को करते हो, वही ज़बान से उसकी महिमा को करते हो, वही ज़बान से परमेश्वर के नाम को जय जयकार करते हो, वही ज़बान से परमेश्वर के वचन में ध्यान को देते हो। बाइबल कहता है जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है तुम्हारे दिमाग में, जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग को जकड़ के रखा है, जिस बात को तुम भूल नहीं सकते, जिस लोग को तुम माफ नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से तुम झगड़ा हुआ है, बाइबल कहता है कि तुम्हारा वो फाउंडेशन जो है वो हिलना शुरू करेगा और वो टूट जाएगा। वो बंधुआई से तुम छुटकारा को पा सकते हो। Those strongholds will be broken, the Bible says. धर्मशास्त्र कहता है verse 29 में, then he called for a light. He ran in and fell down trembling before Paul and Silas. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के भक्त लोग तक वो दौड़ते आया। जो गार्ड बैठा था, जो रखवाला कर रहा था, उसने दौड़ कर आकर और कांपता हुआ, बाइबल कहता है कि वो कांपता हुआ पौल और साइलस के पांव में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। और गिड़गिड़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं वो क्या बोला। इसमें कहता है verse 30 में, and he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? And verse 31 says, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household will be saved. बाइबल कहता है पौल और साइलस परमेश्वर के भक्त के पांव में, ये गार्ड ने गिर कर और कांपता हुआ और पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं प्रभु यीशु को अपनाने के लिए क्या मुझे करना चाहिए।
और दोनों ने कहा अपना जीवन तुम प्रभु यीशु को दे दो, तुम बचोगे और तुम्हारे घराना बच जाएगा। आज तुम जहां से सुनते हो, मैं चाहता हूं ये पवित्र वचन को ध्यान से सुनकर और वो फैसला को करें जो वो गॉड ने फैसला किया कि मैं और मेरे घराना बच जाए, इस मारामारी से बच जाए, इस पेंडेमिक से बच जाए, ये मौत से बच जाए, इस दुख से हम बच जाए, सब कुछ से छुटकारा पा ले, कि हम परमेश्वर को जान जाए, सच्चा मसीहा को जान जाए, उस परमेश्वर को जान जाए जो हमारे लिए अपना प्राण को दिया है, जो खुद हमारे लिए मरा और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। हम धन्यवाद दें। ये समय, ये वचन मैं तुम्हारे तक छोड़ता हूं। आइए क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं अपनी आंखों को बंद कर लें, सर को झुकाए और प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हे हमारा पालनहारा तारनहारा परमेश्वर, हे हमारा परमेश्वर जो अपने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है, हे परमेश्वर जो ने कहा है कि पुकार मुझे मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज प्रभु कई लोग, सैकड़ों लोग परमेश्वर तुझे पुकारते हैं और यही हम प्रार्थना करते हर एक के लिए प्रभु कि इन लोगों का प्राण बच जाए, इन लोगों के घर और घराने समेत बच जाए, प्रभु यीशु को जान जाए। मेरे प्रभु यीशु तुझे पुकारे, तुझे पहचाने, ये बच जाए। मेरे प्रभु यीशु तेरा धर्म शास्त्र पढ़ना शुरू करे। हे मुक्तिदाता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हजारों के हृदय को तू छुआ है और प्रभु हजारों को तू बचाएगा। धन्य मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर कहें आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। We thank you for tuning in this week and hope to see you next week. Before we go, let us say the declaration together. 2021 is my year of the Word becoming flesh. By faith, I am living by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word is my counsel and wisdom, and your word gives me understanding. This year, I'm treasuring the words of your mouth more than my necessary food. Every prophetic word spoken over my life is being fulfilled in the season. Your word is a sword. The Spirit in my mouth manifests in signs, wonders, and miracles in and through my life. Jesus, you are the word, full of grace and truth, and we are beholding your glory as your word works in our midst. In Jesus' name, amen. Don't forget to like, share, and subscribe, and we hope that you follow us on all our social media platforms. Tune in, same time, same place.